Good evening, students, and I am back with a new lesson. That is, today we are going to start our supplementary reader, lesson 1. The name of the lesson is The Triumph of Surgery. Okay, and you all know that what you have to do, you have to subscribe the channel and press the like button. But most of the students, they are viewing but not pressing the like button. So I don't come to know whether you have understood or not. So please be careful about this instruction. And now, first of all, I would like to tell you that characters in this story, who are the main characters. So सबसे important जो character है, that is Tricky. कौन है? Tricky. Tricky is the dog. Tricky. Okay. Tricky is the dog. He's a small dog. And then Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey. Okay. She is a rich lady, mistress of Tricky. Okay. And her overfeeding made him very fat and ill. Mrs. Pumphrey used to feed him a lot. उसको बहुत खाना खिलाती थी, ओवर पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी, जिसकी वजह से ट्रिकी जो था वो कैसा हो गया था, बहुत फैट और इल. ट्रिकी का क्या हो गया था? फैट एंड इल. ही बिकेम फैट एंड इल. ओके. देन शी ब्रॉट द डॉग टू द नरेटर. नरेटर मीन्स हु इज टेलिंग द स्टोरी, जो कहानी को कह रहा है. हु वॉज अ वेटनरी सर्जन. ही वॉज अ सर्जन, वेटनरी. ये वर्ड को नोट कर लीजिए, वेटरीनरी. वेटनरी मीन्स जानवरों का डॉक्टर. ही वॉज अ वेटनरी सर्जन. सो ही एडवाइज मिसेस पम्फ्री टू कंट्रोल हिज डाइट, बट शी कुड नॉट. वो उसको एडवाइस करता है कि इसकी डाइट को कंट्रोल करो, लेकिन वो नहीं कर पाती. वन डे what happens? He receives a call from her. The narrator reached her house and decides to take the dog with him to his clinic. और जब वो उसके घर जाता है तो वो ये डिसाइड करता है लेखक कि मैं इसको अपने संग अपनी क्लिनिक ले जाऊंगा. तो इस पर क्या होता है? एट दिस मिसेस पम्फ्री स्टार्ट्स वीपिंग एंड द डॉग puts she all because she pampers the dog. So when the dog is going to the clinic, she gives the doctor all the dog's bed, bowls, toys and fur coats, etc. in the car. All the things she puts in the car, that you take this also, take this also. Okay. So in the clinic, what happened? Now the doctor, he starts his treatment. And what is the treatment? He gives him nothing to eat except water. Okay. That is only water. Doctor is giving him only water to drink for 2 days. For 2 days, he doesn't give him anything to eat, only water. On the third day, the dog, when he has no food, so his fat also reduces and he becomes little energetic. So he starts showing some signs of improvement. Now he starts following the other dogs. The other dogs who were there, he starts following the other dogs. And now Mrs. Pumphrey, what happens? Mrs. Pumphrey is feeling very bad. The dog is in the clinic and she's so much worried. So what she does? She starts sending eggs and wines for her dog. She starts sending eggs and wine. वो अपने कुत्ते के लिए अंडे और शराब बेचना शुरू करती है. वाइन एक प्रकार की शराब होती है. द नरेटर ऑल्सो इन्जॉयड इट अमंग. तो अब नरेटर जो है वो उसको बहुत इन्जॉय करता है उस फाइन को. एक्चुअली में डॉग के नाम से आता है, लेकिन हु इज़ इन्जॉइंग इट? The narrator and his friends. Okay. After fortnight, after 15 days, he calls Mrs. Pumphrey to take the dog home. 15 days में dog बिल्कुल fit हो जाता है. He calls Mrs. Pumphrey, you take him. And within few minutes, she comes and sees the dog. So after seeing the Tricky, she is very happy because she thinks the doctor has eventually got the triumph over surgery. Triumph over surgery. Triumph means विजय. उसको सर्जरी में विजय मिल गई है. डॉक्टर को अपना जो उसने ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया ट्रिकी का, उसमें उस डॉक्टर को विजय प्राप्त हुई है. बट एक्चुअली इन हार्ट एंड हार्ट वी नो दैट डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया है. ही हैज़ गिवन नथिंग. ही हैज़ जस्ट ही ट्राई टू मेक डॉग फिट. सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी. आई होप इट इज़ क्लियर. Now I tell you that before there were no long answers based on supplementary, but now 8 marks long answer is included. So you have to be very careful when you study your supplementary reader. Okay, now let's start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street
with his mistress and I was shocked at his appearance. जब उसने उसको अपीयरेंस देखा, जब उस कुत्ते को देखा तो वो शॉक हो गया. He had become hugely fat like a bloated sausage. bloated sausage माने क्या होता है? bloated माने फूला हुआ, फूल गया. सॉसेज एक प्रकार का, मैंने आपको उसमें बताया 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस सॉसेज शब्द को, है ना. तो एक प्रकार के सैंडविचेज हैं. तो उसको जैसे कोई फूल गया, वो बिल्कुल ब्लोट हो गया. तो समझ में आया? ब्लोटेड मीन्स सूजा हुआ, फूला हुआ. सो ही वॉज, इसको आप बोल सकते हैं स्वॉलन. इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? स्वॉलन, स्वॉलन. ठीक. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा लग रहा था एक एक कोने पे एक एक टांग है और बाकी वो सब फूल गया है. हिज आईज ब्लड शेड एंड ड्यूमी. ड्यूमी माने क्या होता है? वेट, गीली. उसकी आंखें बिल्कुल रेड और गीली गीली हो रही थी. एंड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर को निकल रही थी, जबड़े में से जीभ उसकी बाहर को निकल रही थी. ठीक है. सो मिसेस पंफ्री हैसन टू एक्सप्लेन. हैसन माने जल्दी जल्दी, हरिड, जल्दी जल्दी उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू करा. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस माने टायर्ड, विदाउट एनर्जी. लिस्टलेस माने टायर्ड, यानी कि वो बहुत टायर्ड है. डॉग मेरा बिल्कुल एनर्जी के बिना है. मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. शायद वो कुपोषण का शिकार है. मॉल न्यूट्रिशन, ओके. मॉल वर्ड मीन्स कू. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं उसको खाने के बीच में भी कुछ और दे रही हूँ. सम मीट, मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. वो इतना कुछ देने के बाद खाने के बीच में वो कह रही है मैं ज़्यादा कुछ नहीं उसको दे रही हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू. उसने कहा क्या आपने मिठाई में कटौती करी? ओ आई डिड इट फॉर अ बिट, थोड़े टाइम के लिए की. बट इट सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट. वो पर लेकिन इतना वीक लग रहा था कि मुझे उसको आइडिया को छोड़ना पड़ा. ठीक है. ही डज लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम. उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकती. तो आप देख रहे हैं कि डॉग का ओवर डॉग को खिला रही हैं वो. ठीक है. रिलेंट माने सॉफन. रिलेंट माने क्या होता है? सॉफन, कमज़ोर होना. रिलेंट. ठीक. तो उसने कहा कि मैं उसका इसलिए मिठाई वगैरह उसकी बंद नहीं की, बिकॉज ही वॉज सो, आई हैड टू रिलेंट, आई हैड टू बिकम सॉफ्ट फॉर हिम. ठीक है. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. यही प्रॉब्लम थी, ओवर ईटिंग. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी में क्या कमजोरी थी, क्या उसकी कमी थी? लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. उसने कभी खाने को मना नहीं किया. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. टैकल माने वो किसी भी समय इस खाने को वो टैकल कर सकता है, इस खाने को वो आराम से पचा सकता था, आराम से वो ले सकता है खाना. ठीक है. ही हैड नेवर, he would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mr. Puffrey hadn't mentioned. और वो सोचने लगा कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन नहीं की हैं, जो डॉग को खिला रही हैं, वो बता नहीं रही हैं जो. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप उसको ढेर सी एक्सरसाइज करा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉगिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बागो, सो देर हैज़ बीन नो राइट थ्रोइंग लेटली. तो वो कह रही हैं कि आप, उसने का पूछा कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो पहले तो थोड़ा बहुत वॉक कर रहा था ये, लेकिन जो मेरा हॉजकिन जो माली है उसकी कमर में दर्द है. लुम्बागो माने लंबर बोन, पीठ की हड्डी में लंबर होती है ना, तो लुम्बागो मीन्स पीठ में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ रहा है. तो आजकल वो जो रिंग का थ्रो का गेम खेलता था वो बंद हो गया है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रिकी जो है वो फैट और इल है. वाई? बिकॉज मिस्टर पंफ्री इज़ ओवर ईटिंग हिम, ओवर फीडिंग हिम. क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं हम. वो क्या कहते हैं कि ओके, फिर वो बोलते हैं कि नाउ आई ट्राई टू साउंड सिवियर. सिवियर माने स्ट्रिक्ट. मैंने कुछ कड़क होने की कोशिश करी, थोड़ा सा कठोर बनने का प्रयास किया. नाउ आई रियली मीन दिस. अब मुझे समझ में आया. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट.
उसने कहा आप उसको अच्छे से खाना खिलाई जा रही हैं और जब तक आप उसके संग स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, उसको डाइट पे नहीं रखेंगी, वो दिन पर दिन ख़राब होती जाएगी उसकी तबीयत। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। रंग हर हैंड्स मतलब उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे मरोड़ा। रंग माने क्या होता है? मरोड़ना, ट्विस्ट करना, ठीक है। रिंग मीन्स ट्विस्ट। इसका प्रेजेंट टेंस क्या है? रिंग, रिंग, रंग, रंग, ठीक है। याद रखो ING वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं इनमें रिंग, इसका पास्ट टेंस हमेशा RUNG होता है। थर्ड फॉर्म रिंग, रंग, रंग, ओके। तो उसने अपने हाथों को आपस में मरोड़ा और फिर उन्होंने क्या कहा? ओ वेल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमेंट टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उन्होंने सर झुका के वो चली गई। ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल डिटरमेंट है, बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि वो नई रेजीम माने दिनचर्या, उसके लिए जो भी नई दिनचर्या होगी, नए नियम तुरंत लागू करने वाली हैं, जो नया रूल है। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैं उनकी कंसर्न देख रहा था कि कितनी उनको चिंता है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन द लॉन्ग लिटिल ट्वीड ओके कोट, लिटिल ट्वीड कोट, जो उसका कोट था उसमें वो अपना फुदक फुदक के चल रहा था। फोटो में देख सकते हैं कि कैसे वो अपने कोट में, ये कोट पहने हुए है ट्वीड, उसमें वो चल रहा है, ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसने कहा ऐसे पूरा उनके पास वार्डरोब है। वार्डरोब माने अलमारी भरी हुई है ऐसे कोट से, जैसा ये कोट पहने हुए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ओके। सो फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। सर्दियों के लिए अलग कोट और रेन कोट उसके लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर करके लड़खड़ा के चल रहा था। और ड्रूपिंग माने क्या होता है? उसकी चाल बिल्कुल लटकी हुई थी, उसके हाथ पाँव बिल्कुल हैंगिंग डाउन, ठीक है। तो उसके बिल्कुल हैंगिंग डाउन थे ऐसे। और वो समझ गया लेखक कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्री इसको फ़ोन करेंगी कि इसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहा था, ही वॉज अ वेटनेरियन, तो वो समझ गया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्लियर? द एक्सपेक्टेड कॉल, और जैसा उसने सोचा था डॉक्टर ने कि जल्दी ही इनकी तरफ से फ़ोन आएगा, वो आ गया। कि कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट माने क्या होता है? वेरी अपसेट। वो बहुत ही अपसेट हो गई मिसेस पम्फ्री। क्यों? क्योंकि जो जैसा कि वो डॉग को खिला रही थी, तो डिस्ट्रॉट मीन्स अपसेट। शी बिकेम वेरी अपसेट, ओके। डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बोस्ट ऑफ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और इसके अलावा वो बहुत बाउट्स माने फिट्स। बाउट्स माने क्या होता है? फिट्स, दौरा। उसको उल्टी के दौरे आ रहे थे। ही स्पेंट ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। वो पूरे समय रग पर, रग माने एक मोटा कंबल, ब्लैंकेट, थिक वुल, एक ब्लैंकेट होता है मोटे वुल का, उसके ऊपर वो सारे टाइम लेटा रहता था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। पैंटिंग माने हाफना, यानी कि हाफते हुए, गैस्पिंग। हाफने के लिए दूसरा वर्ड क्या है? गास्पिंग। तो वो हाफता हुआ उस पर सारा दिन लेटा रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। वॉक्स पे भी नहीं जाना। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। आई मेड माई प्लान इन एडवांस। मैंने पहले ही एडवांस प्लानिंग कर ली कि मुझे क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द होम फॉर अ पीरियड। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight and be kept under supervision. डॉक्टर ने पहले ही अपना सलाह कर लिया, मन में सोच लिया कि वो जाएगा, उसको लेके आएगा और उसको कम से कम 15 दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखेगा, उसकी मैडम से दूर। क्योंकि अगर वो, जब तक वो मिसेस पम्फ्री के संग रहेगा, वो अपना कुछ भी उस पर नहीं कर पाएंगी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। अब जैसे ही जाके उसने उनको ये खबर बताई कि अब मैं इसको लेके जाऊंगा और अपने पास रखूंगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो वो क्या हो गई? वो बिल्कुल से सूंड हो गई। सूंड माने क्या होता है? अचेत, लगभग। शी बिकेम अनकॉन्शियस, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो गई। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई। उसको पता था कि वो ज़रूर पाइन एंड डाई। पाइन माने क्या होता है? पाइन माने होता है कि वो भूख को मर जाएगा, यानी कि यदि उसको नहीं देखेगा तो वो सूख कर मर जाएगा,
कि वो उसको देख के बिना देखे सूख कर बेचारा मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि खुद शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो रोज़ उसको नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर मैंने एक फर्म डिसीजन ले लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी वेल इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, केवल यही एक तरीका रह गया था कि ट्रिकी को उनसे बचाया जाए, क्योंकि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम अवे विदाउट डिले। उसने कहा कि मैं इनको बिना किसी डिले के, बिना देरी किए इनको अपने इस कुत्ते को अपने साथ ले जाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि ट्रिकी का क्या हाल था और क्यों हो रहा था ऐसा। ट्रिकी में एक्चुअली में बीमार नहीं था, अपने मिस्ट्रेस के अधिक लाड प्यार की वजह से वो बीमार हो गया था। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, जब वो उसको लेके चला तो मिसेस पम्फ्री की वेलिंग माने क्या होता है, जोर जोर से रोना, चिल्लाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोर्निंग माने कोई जब मर जाता है तो वेलिंग होती है, मोर्निंग होती है, रोना धोना, ये सब। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उसने उसको अपने कंबल में लपेट के वो उसको ले आए। ठीक, द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब उनके घर में जैसे ही वो डॉग को लेके चला तो सारा स्टाफ एकदम से स्टूड अप हो गया, खड़ा हो गया। राउज्ड माने राउज, खड़ा हो गया। एंड उधर उधर भगदड़ मच गई, उसका बेड लेके आने लगे सब लोग। रश्ड इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर लोग भागने लगे। ठीक, उसके फेवरेट कुशन, उसकी गद्दियाँ, उसके टॉयज़, रबर रिंग्स, उसके ब्रेकफास्ट बाउल, उसके बाउल्स, कटोरा खाने वाला, नाश्ते का अलग था, लंच का अलग था, रात के खाने का अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं समझ गया कि अभी जाने क्या क्या लाएंगी, तो इसलिए उसने स्टार्ट कर दिया ड्राइव करना। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो चला वहाँ से, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई माने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कि निराशाजनक चीख जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही निराशाजनक चीख उनकी हो गई। डिस्पेयरिंग, डिसअपॉइंट, ठीक है, APPOINT, डिसअपॉइंटेड, बहुत ही डिसअपॉइंटेड चीख उन्होंने मारी, निराश हो गई वो कि अरे गया मेरा डॉग। तो और एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रोने लगे, जैसे कि कोई डॉग नहीं जा रहा हो, पता नहीं क्या हो गया हो। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, तब उस सड़क पे जब वो जा रहा था तो उसने डॉग की तरफ एक नज़र से देखा। पैथेटिक, बेचारा दया का पात्र था वो, और वो सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। आई पैटेड हिज हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, उसने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पूँछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, उसने कहा कि क्या कर सकता हूँ, बेचारा डॉग जो है ना, इसको तुम्हें पैर चलाने तक की भी शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं ले, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारा इलाज करना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची कि तुम अपना एक पैर हिला सको, यानी कि वो ही बिकेम सो फैट दैट ही कुडंट मूव हिज लेग ऑल्सो। तो इसलिए उसने, डॉग ने भी खाना पीना बंद कर दिया था, क्योंकि एक लिमिट होती है, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो आप उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करने से रिफ्यूज़ करने लगती है। तो यही उसके संग, डॉग के संग स्थिति हो रही थी, तो इसलिए डॉग उसको ले आया। अब क्या हुआ, एट द सर्जरी, जब वो उसको अपने ऑपरेशन थिएटर में ले गया, तो ऑपरेशन थिएटर जो उसका ऑपरेशन का पूरा क्लिनिक बना हुआ था एक्चुअली में, वहाँ ले गया। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी मीन्स उसके गैदर हो गए, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, सारे डॉग्स उसके चारों तरफ गैदर हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down by motionless on the coffin, और जब ट्रिकी ने उनको देखा, पूरे नॉइजी पैक को, डॉग्स को हल्ला कर रहे थे, जब उनको देखा और जब उसको नीचे रखा, वो मोशनलेस, बिना किसी मोशन के, बिना किसी मूवमेंट के, वो इनएक्टिव होके वहाँ पे पड़ा रहा। मोशनलेस मतलब इनएक्टिव, वो बिल्कुल इनएक्टिव वहाँ पे पड़ा रहा। ओके, The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. दूसरे डॉग्स ने जब उसको देखा, अरे ये तो अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बोरियत से भरी चीज़ है, तो वो वहाँ से चले गए, उसको छोड़ के, इग्नोर करके। I made up
a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. उसने बाकी कुत्ते जहाँ सोते थे वहीं पर उसके लिए भी एक अच्छा सा लूज बॉक्स में उसके लिए बिस्तर बनाया. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. उसने उनको कुछ खाने को नहीं दिया, 2 दिन सिर्फ पानी दिया. At the end of the second day he started to show some interest in the surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो इस तरह से आप देखिए कि एक एक दिन करके उस डॉग की मूवमेंट शुरू हुई. तो पहले दिन तो उसने 2 दिन तो कुछ नहीं पानी पिया. तीसरे दिन उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन उसने विम्पर किया. विम्पर माने ठिनठनाना, यानी कि टू क्राई विथ फियर. टू क्राई विथ फियर, विम्पर माने क्या होता है? टू क्राई विथ फियर और पेन. तब उसको कुछ थोड़ा पेन, थोड़ा तकलीफ, डर या अपने घर की याद आने लगी, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो वो थोड़ा विम्पर करने लगा. ठीक है, जब उसने बाकी डॉग्स को सुना. When I opened the door, ट्रिकी trotted out. जब उसने उनका दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉट करता हुआ बाहर आ गया. ट्रॉटेड माने मूव, फुदकते, मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉट. तो वो मूव किया बाहर. एंड वॉज इमीजिएटली इनगल्फ बाय जो. जैसे ही वो बाहर आया तो उसको जो नामक कुत्ता था, एक दूसरा कुत्ता था, उसने उसको आके घेर लिया. ठीक है ना. तो जो ये सब शिकारी कुत्ते थे उनके यहाँ, मतलब बहुत बड़े बड़े कुत्ते. एंड इमेजिन इनगल्फ, उसको घेर लिया. इनगल्फ माने घेरना, सराउंड कर लेना. द ग्रे हाउंड, क्या नाम था उस कुत्ते का, क्या ब्रीड थी? ग्रे हाउंड था वो. एंड हिज फ्रेंड, शिकारी कुत्ता होता है ये ग्रे हाउंड. एंड हिज फ्रेंड, बाकी उसके दोस्त भी आ गए. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन एंड द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम स्लोली, रोलिंग स्लाइटली अपॉन विथ हिज सरप्लस फैट. अब आपने देखा होगा डॉग्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरा डॉग एकदम लेट जाता है और अपना ज़मीन पे पूरा फ्लैट होकर लेट जाता है. बाकी कुत्ते उसको सूंघते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं. वो पाते हैं कि ये दुश्मन नहीं है हमारा. तो इसी तरह से ये ग्रे हाउंड जो था, जो और बाकी जो डॉग्स थे, उन सब ने उसको ज़मीन पर लेटाया, फिर उसको सूंघा और जब उसका पूरा इंस्पेक्शन कर लिया तो वो चले गए. और ट्रिकी उनके पीछे पीछे रोल करता, लुढ़कता पुढ़कता अपने मोटापे के संग जाने लगा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. दूसरे दिन मैं भी फीडिंग टाइम, जब उसको खाना खिला रहे थे तो मैंने देखा, मैं भी वहाँ पे था. आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लैप द फूड इनटू द बाउल. उसने देखा कि जब उसने खाने को स्लॉप किया अंदर. स्लॉप माने क्या होता है? स्पिल करना, खाने को छलकाना. स्पिल, खाने को स्पिल किया, यानी कि SPILL, स्पिल किया. जब खाने को उसने अंदर छलकाया तो मैं भी वहाँ पे था. ठीक है. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. सभी कुत्ते एकदम से हेडलॉन्ग माने सर के बल भागते थे खाने के लिए और हाई स्पीड जल्दी जल्दी खाते थे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड द अदर्स ही वॉज liable to have some competition for the last part of his meat. उन्हें पता रहता था कि अगर वो लेट हो जाएंगे तो लास्ट में उनको कम बचेगा नहीं और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा. लाइबल माने क्या होता है? लाइकली. लाइबल माने क्या होता है? लाइकली. ठीक है. और रश माने क्या होता है? क्राउड. रश माने क्राउड. रश माने क्राउड. रश माने कहाँ ये लिखा है? रश माने होता है क्राउड, भीड़. ठीक है. इतना सबको समझ में आ गया इसका. अब इसका नेक्स्ट पेज आ गया है. When they had finished, अब जब उन्होंने खाना अपना पूरा कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी ने क्या किया? पूरी शाइनिंग बाउल्स के चारों तरफ उसने एक चक्कर लगाया. ठीक. एंड देन उसके बाद उसने क्या किया? ट्रिकी ने पूरे उसका चक्कर लगाया और फिर लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम. लिकिंग माने चाटना. लिकिंग माने क्या होता है? लिक करना, चाटना. कैजुअली इन 1 or 2 फॉर देम, इनसाइड, उन बाउल्स के अंदर जाके वो चाटने लगा. अभी तक आपने देखा कि उसको इतना खाना मिलता था ट्रिकी को कि कभी उसको खाने की कमी नहीं होती थी और वो बहुत इन्जॉय करता था अपने खाने को. अकेला ही था और उसको ओवर ईट इतना ज़्यादा मिलता था खाने को, कभी कमी नहीं पड़ी. और यहाँ पर उसके संग क्या हाल हो रहा है? नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम. अगले दिन उसने, डॉक्टर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स हिम. और उसने, जब डॉक्टर ने देखा कि वो
जस्लिंग माने पुलिंग, दौड़ लगा के अपने आप को धक्का मारता हुआ जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि पिछले कल के दिन उसको कुछ भी नहीं मिला था, उसे केवल चाट के रह गया था वो सब प्लेटों को। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, वहाँ से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स। अब उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था और वो केवल डॉग्स के संग क्या कर रहा था, दौड़ लगा रहा था। और स्क्रीमिंग्स माने मुठभेड़, स्क्रीमिंग्स माने क्या होता है, मुठभेड़, कन्फ्रंट करना, सामने आमने आना। तो वो डॉग्स के बिल्कुल सामने सामने बिल्कुल उनसे मिल रहा था जाकर। फ्रेंडली स्क्रीमिंग से आपने देखा होगा, दो डॉग जब आते हैं तो वो एक दूसरे को लात मारते, टांग मारते, खेलते हैं एक दूसरे के संग, तो उसको बोलते हैं स्क्रीमिंग्स। ठीक है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every day few minutes. उसने ये डिस्कवर किया the joy of being bowled. बाउल माने उसको गेंद से खिलाया जा रहा था, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। कभी उसको कोई उल्टा कर रहा था, कभी उसको कोई उसके ऊपर कोई चढ़ कुचल रहा था। तो ये सब चीज़ों को कुछ मिनटों में उसने बहुत से खेल अपने लिए डेवलप कर लिए, जो पहले वो कोई खेल नहीं खेलता था। ठीक है। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर, ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। उसको बाउल्ड ओवर माने उसको लोग नीचे कुत्ते दूसरे नीचे पटक रहे थे, उसके ऊपर चढ़ रहे थे। ट्रैम्प्ड ऑन, उसको कुचल रहे थे। एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर बाद उसको स्क्वैशिंग भी हो रही थी, उसकी पिटाई भी लग रही थी। तो डॉग जैसे आपस में एक दूसरे को मारते हैं, भागते हैं, वो सब मूवमेंट को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उसको कुत्तों की बाकी गैंग ने एक्सेप्ट कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और वो एक सिल्की सा डॉग शैगी क्रू में, यानी कि ये जो दूसरे डॉग्स कैसे थे, सारे शैगी थे। शैगी का मतलब क्या होता है, बहुत से बाल, घने बालों वाला। और ये केवल एक गोल्डन हेयर वाला सिल्की डॉग था, गोल्डन हेयर वाला सिल्की डॉग था। ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो डॉग था ये इन सब में सबसे अलग हो गया, और लेकिन अब वो बिल्कुल अपने ग्रुप के संग मिल गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और मील टाइम्स में वो एक शेर की तरह अपने भोजन के लिए लड़ता। एंड हंटिंग फैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में हैंस को ढूंढता और हंट करता अपने उसके लिए, शिकार के लिए रात में। ही नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसको अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं मिला था, क्योंकि उसको बिना मांगे ही भोजन मिल जाता था। यहाँ पर उसको क्या करना पड़ रहा था, हंट करना पड़ रहा था अपने खाने के लिए, और बाकी डॉग्स के संग झगड़ना पड़ता था अपना खाना खाने के लिए, और वो धीमे धीमे एक्टिव हो गया। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री हावर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड माने पीछे, बैकग्राउंड माने क्या होता है, जो हमारे पीछे में है। ठीक है। तो मिसेस पंफ्री जो थी वो पूरे समय, हाँ, हावर्ड माने चिंता से, पूरी चिंता से मंडराती रहती थी, है ना। तो बैकग्राउंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे जो बैक में चलता है, बैक स्टेज, यानी कि पृष्ठभूमि में जो उसको बोलते हैं, है ना। और हावर्ड माने क्या होता है, मंडराना। हावर्ड माने क्या होता है, मंडराना, यानी कि मूव्ड ओवर। हावर्ड का मतलब क्या है, मूव्ड ओवर। हावर्ड माने मूव्ड ओवर। ठीक है। एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो दिन में कम से कम 12 बार उसको फ़ोन करती थी लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो ये सब पूछती रहती थी, क्या उसके क्वेश्चंस को क्या ढंग से बदला जा रहा है, क्या उसका कोट को मौसम के हिसाब से पहनाया जा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करती रहती थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंगली रैपिडली, और मैं उनको बताता था कि लिटिल फेलो जो छोटा सा कुत्ता है वो आउट ऑफ डेंजर है और धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहा है। कन्विंसिंग माने रिकवरिंग, क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। ठीक है। अब बाकी हम लोग अब कल पढ़ेंगे, इतना ही आज पढ़ेंगे। कल यहाँ से हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो थोड़ा सा ही बचा है। ओके। तो आप इस लेसन को पढ़ के इसके वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से कर लीजिए, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। ओके।
बाय, हैव अ नाइस डे।